السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز محمد ہارون کھوسہ نے اپنے عملے کے ہمراہ آپریشن کر کے سیم شاخ فیز 1 سے غیر قانونی جال نکال دیے۔ اس موقع پر محمد ہارون کھوسہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، صوبت پور کے باسر وڈیرے داؤد خان کھوسہ نے سیم شاخ فیز 1 میں غیر قانونی جال لگا کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے، جس کے باعث گورنمنٹ کے ٹھیکیدار کو نقصان ہو رہا تھا۔ ٹھیکیدار کی شکایت پر کارروائی کر کے سیم شاخ سے لگائے گئے جال کو نکال لیا گیا تاکہ محکمہ فشریز بلوچستان اور ٹھیکیدار کو مالی نقصان نہ ہو سکے، کیونکہ غیر قانونی جال سے ٹھیکیدار کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا، ہر سال کی طرح جون میں محکمہ فشریز کی جانب سے سیم شاخوں میں مچھلی نکالنے کے لیے ٹھیکے ہوتے ہیں، لہٰذا آئندہ غیر قانونی جال لگنے سے گریز کیا جائے، بصورت دیگر ان پر مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ بیت الاسلام ویلفیئر کراچی اور میر صدام خان کھوسہ کی جانب سے تحصیل فرید آباد چتن پٹی کے مقام پر 20 خاندانوں کے ٹینٹ راشن اور بستی خیمہ قائم کیا گیا، جس میں 20 خاندانوں کو راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر میر صدام خان کھوسہ کا کہنا تھا، بہت جلد بیت الاسلام کے تعاون سے مزید ٹینٹ بستی سمیت ان متاثرین میں سیلاب کے لیے راشن اور میڈیکل کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، فوری طور پر انہیں تیار کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، سیلاب اور بارش متاثرین کی بحالی تک اپنے فرید آباد کی عوام کی خدمت جاری رکھیں گے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے غریب کاشتکاروں کی فصلیں اور ذخیرہ کیا گیا اناج پانی کی نذر ہو گیا۔ فصلیں اور زرعی اجناس تباہ ہونے سے ان کا بہت بڑا معاشی نقصان ہوا ہے، لہٰذا حکومت اور دیگر فلاحی تنظیمیں ان کی مدد کے لیے آگے آئیں تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں ان کی مدد ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ کمشنر نصیر آباد ڈویژن بشیر احمد بنگلزئی نے کہا، نصیر آباد ڈویژن میں اب تک 60 اموات ہوئی ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن میں سیلاب متاثرین کی خدمت اور ان کی بحالی کے لیے مجھے ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے۔ ہم سب کو مل کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی خدمت میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ جہاں پر انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی، میڈیا نمائندگان ان علاقوں کی مثبت انداز میں نشاندہی کر کے اپنا فریضہ ادا کریں تاکہ سیلاب متاثرین تک حکومت کی امداد پہنچائی جا سکے۔ ہم سب نے مل کر عوام کے لیے کام کرنا ہے اور ان کے جائز حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر GDIMA نصیر احمد ناصر، ایڈیشنل کمشنر علی محمد حامبی، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری، اسسٹنٹ کمشنر فلائٹ لیفٹیننٹ خالد شمس، کیپٹن ریٹائر عادل علی اور دیگر آفیسران موجود تھے۔ کمشنر نے کہا، ہم سب نے علاقے کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہیں اور اس سلسلے میں ہم سب مل کر عوام کی خدمت اور ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے کہا، چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے خصوصی طور پر 4 اسسٹنٹ کمشنرز، 3 تحصیلداران کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ عوام کی خدمت پر متعین رہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے حل کرنے اور نقصانات کے سروے کے جائزے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں کمیٹیاں تشکیل دی ہیں اور 36 ٹیمیں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس وقت ضلع نصیر آباد میں 40% سروے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ NDMA اور DAPMA کی ٹیمیں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، حکومت کی جانب سے 4500 راشن کے بیگز، 2000 مچھردانیاں اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا گیا ہے، جسے منصفانہ طور پر سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع نصیر آباد میں 66% مریضوں میں ملیریا پایا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں عوام کی طبی سہولیات کی فراہمی میں مؤثر انداز میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA نصیر احمد ناصر نے کہا کہ حالیہ مونسون بارشوں سے بلوچستان کے 32 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں،
300 से जायद अमवात हुई। सूबे भर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 माह से जायद बलोचिस्तान के मुतासरा अवाम की खिदमत जारी है। बहाली का अमल इंतहाई दुश्वार है, मगर हम सबको पुख्ता अज़म के साथ आगे बढ़ना होगा। PDMA की जानिब से नसीराबाद डिवीज़न में मलेरिया, टेम्परेचर, टाइफाइड, गैस्ट्रो और जल्द की बीमारियों के अदवायात की फराहमी के बाद मुतासरीन को रिलीफ फ्राहम होगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में PDMA की जानिब से कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न बशीर अहमद बंगुलज़ई को अदवायात की हवालगी के मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी, PDMA के डायरेक्टर गनी लांगो, XCN PDMA बलाश बलोच रेस्क्यूअर जहांजेब समेत दीगर मौजूद थे। नसीर अहमद दासिर ने कहा कि 13 जून से शुरू होने वाले प्री मानसून के स्पेल से लेकर आज तक PDMA मसरूफ़े अमल है। इस मरतबा पूरे सूबे में हंगामी हालात की वजह से अवाम को मुश्किलात दरपेश हुई हैं, मगर सूबाई हुकूमत अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। PDMA की तरफ से हुकूमत ने सूबे भर के मुतासरीन में खैमे, राशन, अदवायात की फराहमी के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। इतनी बड़ी आबादी तक रिलीफ पहुँचाना एक मुश्किल चैलेंज है, मगर PDMA इन मुश्किल हालात के बावजूद हर लम्हा भर भी खामोश नहीं बैठा। उन्होंने कहा, हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से सैलाब में होने वाली अमवात में 245 अफराद के वर्सा में चेक तकसीम किए गए हैं, जहाँ भाग होने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। तेज़ और लगातार बारिशों की वजह से हालात काबू से बाहर हो रहे थे, मगर अल्लाह पाक की जानिब से शदीद बारिशें रुकने के बाद बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। उन्होंने नसीराबाद डिवीज़न के ज़िला कच्ची से लेकर सोबत तक तमाम सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। राशन टेंट की फराहमी के साथ अदवायात समेत दीगर मशीनरी भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा, सैलाब मुतासरीन सब्र का दामन हाथ में थामे रखें। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक कमिश्नर मरियम खान का आटा गंदम की सूरत हाल और दीगर इंतजामात का जायजा। जिला भर में सस्ते आटे के 43 सेल पॉइंट कायम किए गए। रोजाना की बुनियाद पर 2350 थैला आटा शहरी को सप्लाई होगा। डिवीज़न में आटे की कोई किल्लत नहीं, वाफर मिकदार में गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। शहरी दूध में फेयर प्राइस शॉपें बना दी गई हैं। 10 किलो आटे के फी थैले की कीमत 648 रुपये मुकर्रर की गई। मार्केट से 35 रुपये की कीमत कम पर शहरियों को सस्ता आटा फ्राहम होगा। फ्लोर मिल सरकारी गंदम से सस्ता आटा फ्राहम करने की पाबंद है। गंदम आटा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक मुस्लिम लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब दीगर रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाने में मुकदमा, खुलम खुला इंतकामी कार्रवाई और PTI और इसके इत्तेहादियों की जानिब से बौखलाहट का सबूत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी सदर MPA डॉक्टर लियाकत अली खान ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान अपनी तकरीरों में खुलम खुला ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, जबकि जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब समेत किसी को गिरफ्तार या कोई इंतकामी कार्रवाई की गई तो सबसे पहले सरगोदा से इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलेगी और पंजाब में PTI की इत्तेहादी हुकूमत को दिन में तारे दिखाए जाएंगे। इमरान खान और इनके साथी सियासत में बदतमीजी और बदकलामी का लेक्चर दे रहे हैं। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के साथ पूरी मुस्लिम लीग की क़यादत और पाकिस्तानी कौम खड़ी है। डॉक्टर लियाकत अली खान ने कहा, जोर जबरदस्ती से बनाई गई पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला होश के नाखुन लें, वरना अवामी गैज़ो गज़ब से बच नहीं सकेंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं। खैरपुर टामियावाली से हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक खैरपुर टामियावाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइश ने रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया। तफसील के मुताबिक खैरपुर टामियावाली के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी नईम वड़ाइश अनथक कोशिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने खैरपुर टामियावाली के अवाम के लिए रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच ने कहा, रेस्क्यू 1122 के बाद तहसील खैरपुर टामेवाली में भी बड़े मंसूबे लाए जा रहे हैं। 1122 के बाद तहसील खैरपुर टामेवाली में अशद ज़रूरत है, जिसे मैंने खैरपुर टामेवाली की आवाम के लिए मंजूर कराया। इंशाअल्लाह हल्का भर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे लाएंगे। इससे कबल मुकर्रीन काशिफ राव, अली खान, मलिक नईम, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर अली, साबिक MPA राव तारिक महमूद, एडवोकेट कायमपुर के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद जाहिद मेहताब ने कहा, हमारा लीडर इमरान खान और PTI का मकसद यही है कि पाकिस्तान की आवाम को हर वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाएं। ये हमारे लीडर का मिशन है और हम इंशाल्लाह इस मिशन को ज़रूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे प्यारे भाई राव शाहिद महमूद का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए और जिस तरह मेरे भाई नईमुद्दीन वड़ाइच खैरपुर टामेवाली के लोगों की बेलौस खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। चौधरी नईम वड़ाइच को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ज़िले चेयरमैन बैतुल माल शेख अब्दुल रहीम ने कहा, मैं हम गैर मशरूत तौर पर चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हमायत करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा इलाका पसमानगी का शिकार चला आ रहा है। चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच की क़यादत में तमाम वसाइल हल होंगे। हल्का की आवाम इस बार तब्दीली ला कर रहेगी। आखिर में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच ने कहा, 1122 का मंसूबा इलाके की अहम ज़रूरत था, इसको चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच ने मंजूर कराया। कबल अजीज चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच की अपने साथियों के हमरा आमद पर शहर खैरपुर टामेवाली के लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और फूल भी निछावर किए गए। चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच, चौधरी कलीमुद्दीन वड़ाइच ने दीगर साथियों के हमरा 1122 के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद दुआ मांगी। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एमरजेंसी की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौका पर MS डॉक्टर अतीकुर रहमान ने फूलों का गुलदस्ता देकर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच का इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान मलिक शहजाद जफरवागी, सदर न्यू प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली, चेयरमैन न्यू प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली पीर मोहम्मद हबीब शाह, मोहम्मद सरप्रस्त आला मियाँ फयाज हुसैन पीरजादा, सरप्रस्त सैयद खिजर अब्बास गिलानी, जनरल सेक्रेटरी मेहर मोहम्मद सुफियान, अजहर हुसैन शाद, गुलाम अब्बास पीरजादा, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद जावेद भी मौका पर मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।